Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter name is partnership account preliminaries. Before starting new chapter, first of all we should discuss about the book name and publication of book. The publication of book is Sahit Bhavan publication and the author of this book is Dr. S.M. Shukla, and these books are used in your school. Content of this book is partnership accounts, preliminary partnership account, admission of a new partners, retirement and death of partner, dissolution of partnership firm, companies account, shares and debentures, final account of companies, depreciation, investment account, and accounts of non-trading organization, ratio analysis. In this chapter, now we are going to discuss about the new chapter, that is a partnership account preliminary, and you already know about the partnership, meaning of partnership, characteristics of partnerships, but in this chapter some practical questions, lots of the practical questions are involved in the partnership accounts. Partnership is a relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all, or any of them acting for all. Partnership, a person who have entered into partnership with one another are called individually partners, collectively a firm and name under which their business is carried on is called the firm's name. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो इस चीज़ को शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स को, लॉस को। जब कोई भी पर्सन, दो या दो से ज़्यादा, टू या मोर देन टू पर्सन वर्क टुगेदर एंड देन दे हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस to each other, that is called a partnership. So partnership is a relation between the person who have agreed to share the profit of business का profit share करना, फिर carried on by all या any of them acting for all, या तो सब उस चीज़ को कर रहे हो या तो उनमें से कोई जो है जो सब के लिए कर रहा हो, मगर प्रॉफिट और लॉस सबको शेयर किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दिस इज अ बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। टू एंड मोर देन टू पर्सन आर नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप। एग्रीमेंट बिटवीन सेकेंड पॉइंट इज द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स when the two or more than two person work together, the agreement should be necessary. थर्ड पॉइंट इज बिजनेस, एंड तीसरी क्या चीज़, बिजनेस होना चाहिए। जो वर्क किया जा रहा हो किस पर्पज़ से, वो बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को शेयर करना, जितने भी पार्टनर्स हैं सब जो है सब लायबिल होंगे प्रॉफिट लेने के लिए भी और लॉस को भी सफ़र करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने आगे ऊपर पढ़ा कि उसमें से सब लोग मिलकर काम करें अपने लिए, या उसमें से कुछ मिल करके सबके लिए काम करें, मतलब कि सब लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं पार्टनर में। कुछ पार्टनरशिप ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि एक्टिवली जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ उनका नाम प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट को अर्न करते हैं और लॉस को सफ़र करते हैं। एंड फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप
देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2%। एक पार्टनरशिप को वैलिड तब कहा जा सकता है जब उसमें एट लीस्ट 2% हो। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बट द सेक्शन 464 of the Companies Act 2013 restrict the number of partners to 100 that can carry on partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं लगी है, मगर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अंदर में इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100% से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि 100 पार्टनर से ज़्यादा का पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए। ये किसके अंडर में, किस सेक्शन के अंडर में? 464 कंपनीज एक्ट 2013। अब पार्टनरशिप डीड, वेरियस term and condition for carried on partnership are recorded in partnership deed, which is always in writing। Provision regarding the following are mainly mentioned in this deed। तो बहुत सारे पार्टनरशिप डीड क्या है कि जिसके अंदर सारे पार्टनर्स के टर्म और कंडीशन को मेंशन किया जाता है। तो टर्म और कंडीशन क्या है, किस किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए? तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर फॉर कैपिटल। हर एक पार्टनर ने कितने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया, ये चीज़। लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अब पार्टनर ने कितना लोन दिया फर्म को। ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, पार्टनर के ड्राइंग का कितना निकाल सकता है, क्या रूल है। तो ड्राइंग बाय पार्टनर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाएगा कि कितना कैपिटल पर इंटरेस्ट रेट पेड किया जाए। लोन एंड ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का ड्राइंग और उस पर लोन, उससे रिलेटेड टर्म और कंडीशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, कौन कितना इन्वेस्ट करे है, उस हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर एज अ कमीशन और सैलरी, पार्टनर को रिम्यूनरेशंस देना एक कमीशन के फॉर्म में, एक सैलरी के फॉर्म में। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम पे वो चीज़ कैलकुलेट होना। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, प्रोविज़न जो है डेथ और रिटायरमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। अगर कोई भी पार्टनर की डेथ होती है या कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स की क्या रूल और रेगुलेशन है, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, इसको किस हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। एंड 9 पॉइंट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का क्या रोल है पार्टनरशिप फर्म में। कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो और सारी चीज़ जो है हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, सारे उसके टर्म और कंडीशन। जब भी कोई भी इंसिडेंट होगा या कुछ भी से रिलेटेड वर्क करना है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसी हिसाब से उनको लॉस जो भी होगा लॉस को भी वो सफ़र करेंगे और उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी पे होगा। पार्टनरशिप ड्यूटीज़ एंड राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, subject to the provision of the Indian Partnership Act, the mutual right and duties of partners of a firm may be determined by a contract between the partners। तो इसमें सारे टर्म और कंडीशंस मेंशन किए जाएंगे अगर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, अगर कि म्यूचुअल उसका राइट्स क्या है, पार्टनर्स का ड्यूटीज़ क्या है। अब सिमिलरली अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना, मतलब पार्टनर्स लोगों ने कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं किया, तब क्या रूल होगा और तब पार्टनर्स किस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो अ पार्टनर इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पार्टनर्स जो हैं उनको वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल नहीं है कि वो रिसीव करें रेम्यूनरेशंस। Partner are entitled to share equally in the profit earned
and shall contributed equally to the loss sustained by the firm. पहली चीज़ कि उनको सैलरी और रेम्यूनरेशंस के बारे कोई चीज़ रिसीव नहीं कर सकते। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले ही पार्टनर्स ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हो या दूसरा पार्टनर ने बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, मगर उनको प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Where partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. पार्टनर्स क्या है, वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल, और कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी उनको दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। इफ़ द फर्म हैज़ If partner has made any advance beyond his capital for the purpose of business, he is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. अगर पार्टनर्स ने जो है कुछ एडवांस में अपने कैपिटल को दिया बिजनेस के पर्पस के लिए, तब उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% की, जो कि ये फिक्स है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, there is no statutory provision in the Partnership Act for keeping books of account as in the case of Companies Act for companies. जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट में कंपनी के अकाउंट एक फिक्स होता है, पहले हम लोग जनरल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। इस तरह से जो भी एक प्रोसीजर है उस हिसाब से चलते हैं कंपनीज़ के लिए। मगर पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई भी प्रोसीजर फिक्स नहीं है कि हमको कंपनीज एक्ट के अंडर में वो सारे प्रोसीजर फिक्स है कि पहले हमें जनरल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ऐसा पार्टनरशिप अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप अकाउंट्स को सिर्फ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप फर्म को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो मेथड में डिवाइड किया गया है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। वर्ड क्या है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स, ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्या है। फ्लैक्चुएटिंग मतलब जो चीज़ चेंज हो, जो चीज़ चेंज हो रही हो, और फिक्स वो कैपिटल, वो कैपिटल का वो अमाउंट जो कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वही चीज़ पूरे साल भर रहेगा। फ्लैक्चुएटिंग कि इनने एक बार 50,000 किया, फिर 3 महीने के बाद फिर 20,000 किया, फिर 5,000 रुपये किया इन्वेस्ट, तो वो हो गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एक बार पूरे साल में एक बार 1 लाख रुपीज़ कर दिया, फिर साल भर जो है कुछ भी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। Under fixed capital account method, two accounts are included. First is the capital account, second is the current account. तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट को हम लोग भी दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करो कि डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड जितने भी गेन होंगे पार्टनर को कितना गेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, और डेबिट साइड पार्टनर्स को कितना लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट साइड जितने भी गेन वाली चीज़ें होंगी, पार्टनर्स को जिस चीज़ के थ्रू गेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और डेबिट साइड में लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो एक बार पूरे साल में अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया गया उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बी बाई डी। क्योंकि बी बाई डी यहाँ क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो है हमारे पिछले से इसको यहाँ पे लाया गया है। फिर उसके बाद अगर फिर बीच में पार्टनर्स अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बाई बैक करके लिख देंगे, अगर नहीं करता तो बाई बैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको टोटल करके उसको डेबिट साइड क्या लिखेंगे, क्लोजिंग सी बाई डी, क्लोजिंग टू बैलेंस सी बाई डी। ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट।
फ्लैक्चुएटिंग क्या है, उसके बाद दूसरा है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज़ अ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या किस फॉर्म में लिखना है कि जितना भी पार्टनर्स को मिल रहा है साल भर में, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के साथ साथ सैलरी मिल रही, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट में जा रहा है वो लिखना है, तो वो हमारा डेबिट साइड होगा। ये सारी चीज़ हमारा बाई बैलेंस बी बाई डी, सैलरी अकाउंट, कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर लॉस के केसेस में है तो उसको लिखना है ड्राइंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर ये सारी चीज़ हमारा जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्डेड होगा। ये हमारा किसका है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल है, फिक्स का ये करेंट अकाउंट है। अब फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है कि इसमें अलग अलग अकाउंट हमको नहीं बनाना रहेगा। फ्लैक्चुएटिंग में सब पूरा ऑल ओवर एक बनेगा। इसका मतलब ये कि इसमें जो है हम उसको दो पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक अलग बनाया, जितना उसने इन्वेस्ट किया वो, फिर दूसरा पार्ट फिर बनाएंगे करेंट अकाउंट का। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये ऑल ओवर एक बनेगा। बस यही दोनों में फ़र्क है, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड very well. You have any doubt, you can ask me. Thank you.